भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। கடுமையான வெயிலில் பணியாற்றிய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் உறுப்பினர்களுக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளின் உறுப்பினர்களுக்கும் நான் இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தலைவராக என்னை தேர்ந்தெடுத்து எனக்கு ஒரு புதிய பொறுப்பினை கொடுத்திருக்கிறீர்கள்। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था, और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार தனிப்பட்ட முறையில் நான் பொறுப்புகளை அதிகமாக நேசிப்பதில்லை। இருந்தாலும் 2019ஆம் ஆண்டு நான் இந்த அவையிலே பேசும்போது ஒரு விஷயத்தை வலியுறுத்தி சொன்னேன், அது நம்பிக்கை என்பதாகும்। இப்போது மீண்டும் ஒரு முறை என் பெயரில் நீங்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறீர்கள்। இந்த உடைக்க முடியாத இந்த உறவு நம்பிக்கை सबसे बड़ी पूंजी होता है, और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी हैं। எனவே இந்த நேரம் என்னை மிகவும் உணர்ச்சி அடைந்தவனாக மாற்றி இருக்கிறது। உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவிக்க நான் விரும்புகிறேன்। साथियों, बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं, शायद उनको सूट नहीं करता होगा, लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। மிகவும் குறைந்த நபர்களே இதை பற்றி எல்லாம் பேசுவார்கள், ஏனென்றால் அது அவர்களுக்கு பேசுவதற்கு உரிய விஷயமாக தோன்றாது। ஆனால் 22 மாநிலங்களில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை மக்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள்। सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, எங்களுடைய இந்த கூட்டணி भारत की जड़ों में
பாரதம் என்று சொல்லும் போது அதன் பின்னணியில் இருக்கின்ற அந்த உணர்வினை பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு கூட்டணி, एक अर्थ में प्रतिबिंब அதன் है। பின்னணியில் இருக்கின்ற உற்சாகம், வேற்றுமைகள், அவை அனைத்தையும் और मैं உருவகப்படுத்துகின்ற ஒரு इसलिए कह கூட்டணி. रहा हूं कि थोड़ी नजर करें, हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। இந்தியாவில் பழங்குடியின மக்கள் சில பகுதிகளில் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். அவ்வாறு அவர்கள் அதிகமாக இருக்கின்ற 10 மாநிலங்களில் 7 மாநிலங்களில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறது. और देश में चाहे हमारा गोवा हो या हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ईसाई भाई बहन रहते हैं, आज हम उन राज्यों में भी एनडीए के रूप में सेवा का अवसर हमें मिला। ஒரு சில மாநிலங்களில் கிறிஸ்துவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். கோவா, வடகிழக்கு மாநிலங்கள் ஆகியவற்றில் அந்த மாநிலங்களிலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு ஆட்சி பொறுப்பு கிடைத்திருக்கிறது. हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। தேர்தலுக்கு முந்தைய கூட்டணி ஒன்று இது நாள் வரை இந்தியாவில் இந்த அளவிற்கு பெரிய வெற்றியை பெற்றதில்லை. और ये गठबंधन का विजय, हमने बहुमत हासिल किया है। और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र அரசை நடத்துவதற்கு பெரும்பான்மை அவசியம். लेकिन ஜனநாயகம் இதைத்தான் சொல்லுகிறது. सर्वमत बहुत जरूरी होता है। ஆனால் நாட்டை வழிநடத்தி செல்வதற்கு அறுதி பெரும்பான்மை அவசியம். और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई இன்று நீங்கள் नहीं छोड़ेंगे। பெரும்பான்மை தந்து எங்களை ஆட்சி நடத்துவதற்கு தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர்கள். எனவே அனைவருக்கும் ஆன ஒரு ஆட்சியை நடத்துவதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம் என்பதை நாட்டு மக்களுக்கு இப்போது நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். करीब 3 दशक हो चुके हैं। यानी आजादी के 75 साल में 3 दशक एनडीए, ये सामान्य घटना नहीं है जी। विविधता से भरे हुए தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்து 30 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. சுதந்திரத்திற்கு பிறகு இவ்வாறு 30 ஆண்டுகள் ஒரு கூட்டணி ஆட்சிக்கு வருவது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि किसी एक समय वो था कि संगठन के कार्यकर्ता के रूप में इस अलायंस का हिस्सा था, व्यवस्थाओं से जुड़ा रहता था और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते मेरा भी नाता इससे 30 साल का रहा है। और मैं कह सकता हूं, हकीकतों के तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं, ये सबसे सफल अलायंस है। இவ்வளவு ஆண்டு காலமாக நான் உங்களோடு இருந்து பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறேன்.
உங்களோடு எனக்கு ஒரு உறவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அந்த 5 साल का टर्म होता है, அளவில் நான் இது மிகவும் வலிமை வாய்ந்த கூட்டணி என்பதை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस चौथे टर्म में एंटर कर रहा है। साथियों, इस बात को जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, अगर मुक्त मन से, मुक्त मन शब्द बहुत महत्व का है, वे सोचेंगे तो पाएंगे कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये ஆட்சியை பிடிப்பதற்கும் ஆட்சியை நடத்துவதற்கும் राष्ट्र प्रथम के मूल அதற்கென்றே உருவான கூட்டணி இந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அல்ல. இது ஒரு தேசிய மனப்பான்மையோடு நாடு முதலில் இருக்கின்ற எண்ணத்தோடு இணைந்திருக்கின்ற ஒரு கூட்டணி. और 30 साल का लंबा कालखंड शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। और ये मूल्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रकाश सिंह जी बादल, श्री बाला साहब ठाकरे, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री शरद यादव, अनगिनत नाम मैं कह सकता हूं, इन लोगों ने जिस बीज को बोया था वो आज भारत की जनता ने विश्वास का सिंचन कर करके उस बीज को वटवृक्ष बना दिया है। இந்த கூட்டணியை உருவாக்கிய அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்கள், பாலா சாஹிப் महान नेताओं की தாக்கரே அவர்கள், और हमें इसका பிரகாஷ் சிங் பாதல் அவர்கள் விதைத்த விதை இன்று வளர்ந்து மிக பெரிய ஆலமரமாக உருவெடுத்திருக்கிறது. एनडीए की उसी विरासत, उसी मूल्यों को लेकर के निरंतर आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास। जब मन से राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। इन सब ने अपने अपने समय में, अपने अपने कार्यकाल में जब जब जहां सेवा करने का मौका मिला है, गुड इस देश को दिया है। और इस प्रकार से एनडीए இந்த கட்சிகள், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை உருவாக்கிய இந்த கட்சிகள் எப்போதெல்லாம் ஆட்சிக்கு வருகின்ற வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் நல்லாட்சி தருவதற்கான வேலையை செய்திருக்கிறார்கள். साथियों, हम लोगों के सभी के कार्यकाल में, चाहे मैं गुजरात में रहा हूं या बाबू हमारे आंध्र में रहे हो या नीतीश जी ने के लिए भरपूर सेवा की, हम सब के अंदर केंद्र बिंदु में गरीब का कल्याण केंद्रस्थ रहा है. எங்கள் கூட்டணி கட்சிகளின் அனைவரின் மனதிலும் இருக்கின்ற முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் ஏழைகளுக்கு உதவியாக இருத்தல் என்பதுதான். அது குஜராத்தில் நான் முதலமைச்சராக இருந்த போதும் சரி, இப்போது ஆந்திராவில் சந்திரபாபு நாயுடு முதலமைச்சராக இருக்கும் போது சரி, गुड गवर्नेंस के 10 साल को देखा है, इतना नहीं ஏழைகளின் நலனுக்காக நல்லாட்சி தருவதற்காக கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நாங்கள் செய்த பணிகளை மீண்டும் தொடர்வோம்.
जनता जनार्दन ने सरकार क्या होती है, सरकार क्यों होती है, सरकार किसके लिए होती है, सरकार कैसे काम करती है, इसको पहली बार अनुभव किया है। वरना जनता और सरकारों के बीच में एक खाई की व्यवस्था ही बनी हुई थी। हमने उसको पाट दिया है। हमने सबका प्रयास का मंत्र देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए चरितार्थ करके देखा है। साथियों, एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से, और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் அரசின் தலையீடு எவ்வளவு குறைவாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு ஜனநாயகம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது என்ற பொருள்। बहुत आसानी से हम, वरना एक दिन में 10 काम हो तो 10 अलग अलग वो सारी चीजें मांगेंगे। हम बदलाव चाहते हैं। गुड गवर्नेंस का ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की புதிய அத்தியாயத்தை நாங்கள் எழுதுவோம், நல்லாட்சியின் புதிய அத்தியாயத்தை நாங்கள் எழுதுவோம், सपने को साकार करके रहेंगे। நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் என்ற கனவை நனவாக்குவோம்। साथियों, एनडीए में, और मैं अगर विस्तार से कहूं तो सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर है। பாராளுமன்றத்தில் எந்த கட்சியின் உறுப்பினராக இருந்தாலும் என்னை பொறுத்த அளவில் அவர்கள் அனைவரும் சமமானவர்கள்। सबका प्रयास की बात करता हूं तो मैं सदन में भी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हमारे लिए सब बराबर है। और यही एक बात है जिसके कारण முயற்சி சப்கா பிரயாஸ் என்று சொல்லும்போது பாராளுமன்றத்தின் லோக்சபையிலும் ராஜ்யசபையிலும் உள்ள உறுப்பினர்கள் எனக்கு சமமானவர்கள், என்னுடையவர்கள், பிறர் என்ற எண்ணமெல்லாம் எனக்கு கிடையாது। இதனால் தான் மக்களின் நம்பிக்கையை நான் மீண்டும் பெற்றிருக்கிறேன்। हमने 2024 में जिस टीम भावना से काम किया है और ग्रासरूट लेवल पे किया है, सिर्फ फोटो ऑप करना, नेता मिलकर के हाथ हिलाएं और फिर तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, ऐसा नहीं। ग्रासरूट लेवल तक सबने मिल करके ये जो काम किया है, और उसी ने हमें ஆர்கானிக் அலையன்ஸ் का கீழ்மட்ட அளவு வரைக்கும் சென்று தேசத்திற்கான பணிகளை நாம் ஆற்ற வேண்டும் என்பதை நான் கடந்த சில ஆண்டுகளாக செய்து வருகிறேன்। हर किसी ने यही सोचा, जहां कम वहां हम। अगर कोई कमी है तो मैं आऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा।
जहां कम वहां हम எங்களுடைய कार्यकर्ता ने जी करके दिखाया है. பணிகளில் ஏதேனும் குறை இருந்தால் நானே வருவேன். இந்தியிலே சொல்வதாக இருந்தால் ஜஹான் கம் வஹா ஹம் என்ற கொள்கைப்படி நாங்கள் பணியாற்றுவோம். हमारा 10 साल का अनुभव है. भारत के हर क्षेत्र का और भारत के हर नागरिक का जो एस्पिरेशंस हैं, रीजनल एस्पिरेशंस हैं, वे और नेशनल एस्पिरेशंस, इसका एक अटूट नाता होना चाहिए. इसके बीच में நாட்டு மக்களுக்கான ஆசைகள் அபிலாசைகள் என்னவோ, பிராந்தியங்களில் உள்ள ஆசைகள் என்னவோ, இதற்கிடையே ஒரு வலிமையான உறவு பாலம் ஏற்பட வேண்டும். इस चुनाव में मैं कुछ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा जो मेरी नजरिए से मैंने देखा है. இந்த தேர்தலில் ஒரு சில விஷயங்களை என் பார்வையில் நான் பார்த்து சொல்ல விரும்புகிறேன். एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஒரு புதிய அரசியலின் வேரை வலுப்படுத்தி இருக்கிறது. अभी अभी तो उनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया. भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया. कर्नाटक और तेलंगाना में दोनों जगह साथियों, तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा. நான் தமிழ்நாட்டிலுடைய எங்கள் கூட்டணியை பாராட்ட விரும்புகிறேன். और कईयों को पता था कि हम एक साथ एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साथ रहेंगे. और मैंने बहुत से एनडीए के साथी तमिलनाडु में ऐसे हैं कि जिनका कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए वो जी जान से जुटे थे. और इसलिए आज तमिलनाडु में எங்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதற்கு எங்கள் கூட்டணி கட்சிகளிடம் வேட்பாளர் கூட இல்லாமல் இருந்தார்கள். இருந்தாலும் கொடியை உயர பறக்க விட வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் எங்களோடு இணைந்து பணியாற்றினார்கள். அதற்கான வெற்றி தமிழ்நாட்டில் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. साथियों, पुडुचेरी हो, केरला हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान, यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में इतना जुल्म एक विचारधारा को लेकर के जीने वालों के ऊपर हुआ होगा तो सिर्फ मैं कह सकता हूं केरल में. கேரளாவில் எங்களுடைய கட்சி தொண்டர்கள் कश्मीर से भी நிறைய தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள். उसके बावजूद भी அது யூடிஎஃப் ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி, எல்டிஎஃப்பின் ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி, எங்கள் கூட்டணி எங்கள் கட்சி தொண்டர்களை ஏராளமாக கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். இன்று முதல் முறையாக கேரளாவில் இருந்து ஒரு உறுப்பினர், எங்கள் கட்சி உறுப்பினர் பாராளுமன்றத்திற்கு வருகிறார். अरुणाचल में हमने लगातार हमारी सरकार बनती रही है और भारी समर्थन से बनती है. सिक्किम में भी हमारे அருணாச்சல பிரதேசத்தில் எங்களுடைய கூட்டணி தொடர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த முறை மிகப்பெரிய வெற்றியோடு ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறது. बोले हिस्टोरिकली ये सबसे हाईएस्ट विक्ट्री है. और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं है, आंधी है. आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है. ஆந்திராவில் மிகப்பெரிய வெற்றியை எங்களுடைய கூட்டணி பெற்றிருக்கிறது. நான் நாயுடு அவர்களிடம் கேட்டேன், இது எப்படி
उसका சாத்தியமானது என்று அதற்கு அவர் வெற்றி காற்று நம் பக்கம் வீசுகிறது என்று சொன்னார். இது காற்று அல்ல, புயல். புயலே வீசியிருக்கிறது. और मैंने अनुभव किया हमेशा. मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है. இறைவனுக்கு பல வடிவங்கள் இருக்கிறது. இருந்தாலும் பூரி ஜெகநாதர் எப்போதும் ஏழைகளின் கடவுளாக இருக்கிறார். जो क्रांति रूप परिणाम आया है, मैं इसे एक रिवॉल्यूशन देख रहा हूं. அங்கே மிகப்பெரிய புரட்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது. विकसित भारत का हमारा जो सपना है, आने वाले 25 वर्ष, पहले मैंने 10 साल कहा था, या मैं 25 साल कह रहा हूं. அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு நம்முடைய ஆட்சி நடக்கும் என்று நான் முதலில் சொன்னேன். ஆனால் இப்போது சொல்கிறேன், வருகின்ற 25 ஆண்டு கால நம்முடைய ஆட்சியில் ஒரிசா நாட்டின் வளர்ச்சியில் ஒரு பெரிய அங்கமாக இருக்கும். साथियों, हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था. बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? இந்த 4 நாட்களாக எண்ணிக்கை பற்றிய எல்லா விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருந்த போது நான் என் நண்பர்களிடம் கேட்டேன், இந்த தேர்தலில் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் பற்றி யாரேனும் ஏதாவது யோசிக்கிறார்களா என்று கேட்டேன். लगातार ईवीएम को गाली देना, और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते ईवीएम பற்றி இவர்கள் தவறான கருத்துக்களை சொல்லி வந்தனர். நான் நினைத்தேன், இந்த வருடம் இந்த தேர்தலின் போது இவர்கள் ये ताकत है भारत के निष्पक्ष ईवीएम இறுதி ஊர்வலத்தை நடத்தி விடுவார்கள் என்று நான் நினைத்தேன். இதுதான் பாரதத்தின் வலிமை, இதுதான் பாரதத்தின் தேர்தலின் வலிமை. आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे. 5 ஆண்டுகள் நான் ஆட்சியிலே இருப்பேன். 2029ஆம் ஆண்டு நாங்கள் மீண்டும் தேர்தலுக்கு செல்லும் போது மீண்டும் ईवीएम பற்றி யாரும் பேசாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए. भांति भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी. और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे. और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में इस पीक अवर्स में, चुनाव के पीक अवर्स में, यानी कितनी निराशा தேர்தல் கமிஷனின் நடவடிக்கைகளில் தடை ஏற்படுவதற்காக இந்த கட்சிகள் இவர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் வரை சென்று பல்வேறு வழக்குகளை हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें, ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी उनको माफ नहीं करेगा. தேர்தலில் மிக முக்கியமான பணியில் தேர்தல் கமிஷன் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் உள்ள வழக்குகளுக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டி இருந்தது. தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவரும் போது ஒரு உலகத்திலேயே இந்தியாவை தலைகுனிய வைக்கும் அளவில் வழக்குகளை பதிவு செய்வது போன்ற திட்டங்கள் எல்லாம் அவரிடம் இருந்தன. पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं. वे टेक्नोलॉजी को हम महत्व न समझते हैं, न टेक्नोलॉजी स्वीकार करने को तैयार. பழமையான மனதை உடையவர்களாக இவர்கள் இருக்கிறார்கள். தொழில்நுட்பத்தை இவர்கள் நம்புவதில்லை. फिनटेक की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हो गया, मानने को तैयार नहीं. आधार
आज देश की एक இந்த पहचान बना है। मैं தேர்தல் देख रहा हूं कि मुझे வாக்களிக்கும் இயந்திரத்தின் மூலமாக உலகத்தில் இந்தியாவிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெயர் கிடைத்திருக்கிறது என்பதையெல்லாம் அவர்கள் மறந்துவிட்டார்கள். தொழில்நுட்பத்தில் நாம் சிறந்து விளங்குகிறோம் என்பதையெல்லாம் அவர்கள் மறந்துவிட்டார்கள். ये प्रगति के विरोधी, आधुनिकता के विरोधी, टेक्नोलॉजी के विरोधी इंडी अलायंस हमने देखा है। வளர்ச்சிக்கு விரோதமாக இருப்பவர்கள், தொழில்நுட்பத்திற்கு விரோதமாக இருப்பவர்கள் இந்த இந்தியா கூட்டணி. ये भी चिंता का विषय है कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे हैं नहीं हमारे देश में डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं कि वो मोदी बैठ गए। एक चाय बेचने वाला यहाँ पहुंच कैसे गया? எங்களுடைய நாடு மதர் ஆஃப் டெமோக்ரசி என்று டமாரம் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் அந்த சமயத்தில் இவர்கள் இந்தியாவில் ஜனநாயகமே இல்லை என்று உலக அளவில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करने का जो उनका षड्यंत्र है, मैं मानता हूं कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्र की विविधता, विशालता, व्यापकता, गहनता, इन सबको भी जानने समझने के लिए आकर्षित होगी। ऐसे इस चुनाव के नतीजे இப்போது உலகம் இந்தியாவினுடைய தேர்தல் இயந்திரத்தை, தாக்கத்தை, தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. और 4 तारीख को काउंटी, इस बीच की चीजों को आप देखिए, योजनाबद्ध तरीके से देश को हिंसा की आग में झोंकने का भाषण बयान दिए जाते थे। यहां इकट्ठे होना, यहां पहुंचना, यहां करना। कुछ लोग इस चीज को गंभीर नहीं लेते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर है। आप भारत के लोकतंत्र को, पहले उसकी व्यवस्था को अनादर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहौल बना दो कि बस आग लगा देंगे। हर प्रकार से उन शब्दों का अर्थ यही निकलता है कि उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था। लगातार देश के लोगों को बांटने का प्रयास किया। हर एक होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़े, लेकिन हर प्रकार से कोशिश यही की गई। साथियों, मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। 2024ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிவுகளை உலகம் பார்க்கும்போது இது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் மிகப்பெரிய வெற்றி என்று உலகம் பார்க்கும். और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे हैं। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। கடந்த 2 நாட்களாக அவர்கள் பேசியவர்களை எல்லாம் நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் அவர்களுடைய கட்சி உறுப்பினர்களை எல்லாம் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் அல்லவா, அதற்காக என்னென்னமோ சொல்கிறார்கள். கூட்டணி அடிப்படையில் கூட அவர்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு பெரிய ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. लेकिन उसके ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। அவர்கள் சொல்வது போல நாங்கள் தோல்வி அடையவில்லை, தோல்வி அடையவும் மாட்டோம். वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। 4ஆம் தேதிக்கு பிறகு எங்களுடைய நடவடிக்கைகளை பார்க்கும்போது
நன்றாக புரியும். நாங்கள் எங்களுடைய வெற்றியை தக்க வைத்துக் கொள்ள தெரிந்தவர்கள் இல்லை. उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार है. हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का வெற்றி भी கழிப்பிலே நாங்கள் उपहास தலை கொடுத்து ஆடவில்லை. தோல்வி அடைந்தவர்களுக்கு ये हमारे संस्कार है. எதிராக எதையும் செய்வதில்லை. अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए. 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए. फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी தேர்தலுக்கு முன்பு एनडीए. எந்த கூட்டணியின் ஆட்சி இருந்தது, என்டிஏ. தேர்தலுக்கு பிறகு எந்த கூட்டணியின் ஆட்சி இருந்தது, என்டிஏ என்று ஒரு சின்ன பையன் கூட சொல்லுவான். இதுல தோல்வி எங்கிருந்து வந்தது? 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई. 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கூட காங்கிரஸ் 100 தாண்டவில்லை. 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 2019, 24 ஆகிய 3 தேர்தல்களையும் இணைத்து சொல்வதா जितनी இருந்தால் सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है. இந்த 3 தேர்தல்களிலும் அவர்கள் பெற்ற மொத்த இடங்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகமாக நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் இந்த முறை. और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है. वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं. साथियों, इंडिया अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, आज भी वो उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाए हैं या समझना चाहते नहीं है. भारत के இந்த सामान्य இந்தியா கூட்டணி மக்கள் एक समझ है. இந்தியாவின் சாமானிய மக்களின் சக்தி என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள மறுக்கிறார்கள். समझ पहचानता है, वो वहां नहीं है. साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा. और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता. 4ஆம் தேதிக்கு பிறகு நடக்கின்ற விவகாரங்களை பார்க்கும்போது இந்தியா கூட்டணியின் மக்களுக்கு खुद की पार्टी के पीएम का இந்த ஜனநாயகத்தை மரியாதை செய்கின்ற ஒரு எண்ணம் இல்லை. खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर அந்த नहीं होती. எண்ணம் இவர்களுக்கு தோன்றுவதற்காக நாம் பல காலம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும் போல இருக்கிறது. और मैं समझता हूं कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र की मजबूती और जनता जनार्दन के प्रति आस्था, इसको हम साथियों, लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है. ஜனநாயகம் அனைவரையும் மதிக்கும் எண்ணத்தை நமக்கு தருகிறது. मैं उनको भी बधाई देता हूं. எதிர்க்கட்சியினர் இந்த அவைக்கு தேர்ந்தெடுப்பவர்களையும் நான் और मैं पिछले 10 வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். मिस कर रहा था कि डिबेट, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ डिबेट मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब इस नया जो सदन बना है वो कमी मुझे खलेगी नहीं. शायद हमारे साथ எதிர்க்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வாத விவாதங்களில் சரியாக ஈடுபடுவார்கள், நல்ல விவாதங்களை நடத்துவார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன். में बैठे होंगे, लेकिन राष्ट्र के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में है. राष्ट्र में तो हम सब एक ही दिशा में. எதிர்க்கட்சியாக இருக்கலாம், ஆனால் நாட்டின் எதிர்க்கட்சியாக அல்ல.
எங்களுடைய கட்சி கூட்டணியின் எதிர்கட்சியாக வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தேசத்தை பொறுத்தவரையிலே இங்கே ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சி என்றெல்லாம் ஏதுமில்லை. நாம் அனைவரும் நாட்டின் கட்சி. सदन को समृद्धि देने में वे कुछ न कुछ योगदान करेंगे. அவர்கள் எல்லாம் பாராளுமன்றத்திற்கு வந்து பாராளுமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் ஈடுபடுவார்கள் என்று நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன். बार बार मजबूती दे रहा है कि देश को आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है. இந்த தேர்தல் வெற்றி மீண்டும் மீண்டும் ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்துகிறது. நாட்டை வலிமையான நாடாக மாற்றுவதற்கு என்டிஏ கூட்டணியின் மீது மட்டும்தான் நம்பிக்கை இருக்கிறது என்பதை காட்டுகிறது. और मैं इसे अच्छा मानता हूं और हम सबका कर्तव्य भी मानता हूं. और इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, और मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है. பத்தாண்டுகள் நாங்கள் செய்த ஆட்சி ஒரு ட்ரெய்லர். அது தேர்தல் வாக்குறுதி அல்ல, இது என்னுடைய கமிட்மெண்ட். देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने இன்னும் வேகமாக இன்னும் சக்தியோடு நாட்டின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதில் நாங்கள் வேலை செய்வோம். जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें. जनता चाहते कि हम மக்கள் என்கின்ற மகேசன் நாங்கள் முன்னை விட அதிகமாக அவர்களுக்கு நன்மை செய்வோம் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया. एनडीए என்றால் நியூ இந்தியா, டெவலப்ட் இந்தியா, ஆஸ்பிரேஷனல் இந்தியா என்று நான் சொல்லுவேன். और इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना ये हम सबका கனவுகளை நிறைவேற்றுவதற்கு நம் அனைவரின் இலக்கு, லட்சியம், உத்தரவாதம். साथियों, एनडीए ने हमेशा करप्शन फ्री, रिफॉर्म ओरिएंटेड, स्थिर सरकार देश को दी है. जब जब हमें अवसर मिला हम लोगों ने काम किया है. उसके सामने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए, अब उन्होंने पुरानी अपनी छवि सुधारने के लिए नाम बदल दिया, लेकिन पहचान घोटालों की है. आए दिन घोटाले यही पहचान रही है. एनडीए கூட்டணியின் बदलने के बावजूद भी देश उनके घोटालों को नहीं भुला है, उनको இந்தி கூட்டணி என்று மாற்றியிருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் அவர்களுடைய அந்த கூட்டணியை நினைத்தாலே நமக்கு நினைவு கூறுவது அவர்கள் செய்த ஊழல்கள் தான். इंडी अलायंस वालों ने एक व्यक्ति का अपोज करने के वन पॉइंट एजेंडा के कारण देश की जनता ने उनको ही ऑपोजिशन में बिठा दिया है. ஒரே ஒரு மனிதனை தோற்கடிப்பதற்காக உருவான இந்த இந்தியா கூட்டணியை மக்கள் தோற்கடித்து எதிர்கட்சி வரிசையில் अमर வைத்திருக்கிறார்கள். संकल्प को लेकर के चुनाव में गया था, देश के लिए सकारात्मक सोच को लेकर के गया था, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य को समझ करके नए अवसरों को लेकर के देश को आगे बढ़ने की बात लेकर के गया था. जबकि हमारे सामने जो लोग थे वो भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, यही गुमराह करने वाले काम यही करते रहे थे. अब நாங்கள் வளர்ச்சியை சொல்லி தேர்தலில் சந்தித்தோம். ஆனால் எதிர்கட்சிகள்
तो भी आपको देखेगा उनका चुनाव प्रचार பொய்யுரைகளை சொல்லி வாக்குகள் கேட்டார்கள். एक दृश्य देख लीजिए और उनका एक एक दृश्य देखिए, कितना बड़ा अंतर है. हर चीज में उनका कैरेक्टर दिखाई देता है. और क्या रहा, फोटो ऑप के लिए तो उन्होंने अलायंस घोषित कर दिया है, लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं, चुनावी जंग में एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकते रहे हैं. कभी उन्होंने कहा कि ये तो हमारा वैचारिक अलायंस है, वो विचार लेवल पर ठीक है, बाकी नीचे तो हमारा अपना हम तैयार करेंगे. और अब फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो सीट के आधार पर अलायंस करेंगे, टोटल न भी करें. ये भी खेल खेला. और अभी अभी तो चुनाव पूरा शुरू कर दिया कि ये तो हमारा अलायंस लोकसभा के चुनाव के लिए ही था, बाद में नहीं है, ये भी शुरू कर दिया. यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना, கூட்டணி அமைத்த போது பெரிய கூட்டணியாக இருந்தது. ஆனால் வெவ்வேறு இடங்களில் அவர்கள் எதிர்க்கட்சிகளாகவே செயல்பட்டு வந்தார்கள். தேர்தலில் सत्ता सुख के लिए இடங்களை देने की कोशिश करते थे. பகிர்ந்து கொள்வதிலாவது ஏதாவது கூட்டணி இருக்கும் என்று பார்த்தால் அதுவும் இல்லை. இப்போது தேர்தல் முடிந்த பிறகு இந்த தேர்தலோடு நம்முடைய கூட்டணி முடிந்துவிட்டது என்று சொல்லுகிறார்கள். ये लोग कितने ही बड़े झूठे बोलते रहे हैं. और आप देखिए चुनाव நண்பர்களே, இவர்கள் எவ்வளவு பெரிய பொய்யை சொல்லி கொண்டிருந்தாலும் जो पर्चियां बांटी, ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे. 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है 1 लाख रुपया. தேர்தலுக்கு பிறகு உங்களுக்கு நாங்கள் இதை தருவோம் அதை தருவோம் என்று எல்லாம் இவர்கள் சொன்னதாலே தேர்தல் முடிந்து 2 நாட்களுக்கு பிறகு காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலக வாசலில் மக்கள் வந்து வரிசையில் இருப்பதை நான் பார்க்கிறேன். 4 நாட்களுக்கு பிறகு பைசா கிடைத்துவிடும் என்று இவர்கள் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை தந்து கொண்டிருந்தார்கள். देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों. தேர்தலில் போட்டியிடுவது நாட்டு மக்களை அவமானப்படுத்துகின்ற ஒரு விஷயம். ऐसी हरकतों को न भूलता है न ही कभी. இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நாடு மறப்பதில்லை, மன்னிப்பதும் இல்லை. साथियों, हमारे लिए संतोष की बात है कि हम एक कमिटमेंट से काम कर रहे हैं. 10 साल में हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है. गरीब कल्याण का एक सुरक्षित मजबूत कवच दिया है हमने उसको. और उसके अंदर भी एक नए एस्पिरेशंस पैदा हुए हैं कि हां, अब मुझे गरीब नहीं रहना है. और उसके लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं हर अवसर का फायदा उठाऊंगा. 3 करोड़ गरीबों को घर, ये ऐसे कहने का आंकड़ा नहीं है जी. कितनी मेहनत पड़ती है मुझे मालूम है. நம்முடைய ஆட்சி காலத்தில் நாம் செய்த அந்த நற்பணிகள் எல்லாம் 3 லட்சம் ஏழை குடும்பங்களுக்கு வீடு, ஏழை மக்களுக்கான நலத்திட்டங்கள், இவையெல்லாம் சொல்வதற்காக சொல்லி காண்பதற்காக இல்லை. जिन परिवारों का विस्तार हुआ है, जरूरत पड़ी है और राज्यों की भी उसमें इच्छा है. 25 கோடி மக்களை வறுமை நிலையிலிருந்து மேலே கொண்டு வந்திருக்கிறோம். 70 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों को, नागरिकों को 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था. 5 லட்சம் மேல் மருத்துவ காப்பீட்டு வசதியை நாங்கள் தந்திருக்கிறோம். बैंक से उनको लोन मिले इसकी व्यवस्था. ये मैं समझता हूं कि वायदा हमारे तीसरे कार्यकाल की गारंटियां, सब मैं अभी बताता नहीं, लेकिन கடன் வசதி இவையெல்லாம், இந்த உத்தரவாதங்கள் எல்லாம் எங்களுடைய 3வது ஆட்சி காலத்திலும் தொடரும். இவற்றையெல்லாம் நிறைவேற்றுவதற்காக நாங்கள் பணியாற்றுவோம். गरीब का सशक्तिकरण और मिडिल क्लास को सुविधा, ये हमारी प्राथमिकता है. क्योंकि मध्यम वर्ग अब इस देश का एक बहुत बड़ा चालक बल है. भारत की ग्रोथ स्टोरी में ये ऐसे ऐसे नए फोर्सेस में देख रहा हूं
जो हमारी बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। और इसलिए हम उस पर भी उतना ही, और मिडिल क्लास की बचत कैसे बढ़े, सेविंग कैसे बने, उसके लिए, उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी योजनाओं का विस्तार कैसे किया जाए, हमारे नीति नियमों में बदलाव कैसे किया जाए, उस पर भी हम आने वाले दिनों में काम करते हैं। साथियों, पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारी नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी, ये हमारा कमिटमेंट है। और हमने பாராளுமன்றத்திலிருந்து பஞ்சாயத்து வரை பெண்களுக்கான சக்தியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய உத்தரவாதம்। उस बात को हमने आगे बढ़ाया और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सदन में बहुत बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें देश का नेतृत्व करती हुई दिखाई देगी। इस पूरे चुनाव में हम सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट देने वाली पार्टी रहे हैं, ये हमारा कमिटमेंट है। हमारी महिला सांसदों को जो आशीर्वाद देश की जनता ने दिया है, मैं इसके लिए विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, आपने देखा होगा G20 समिट में दुनिया के सामने एक विषय लेकर के हम बड़े आग्रह से गए हैं, और वो है एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, डेवलपमेंट ऑफ विमेन। इन सारी बातों को तो हम परिचित हैं। हमने एक नया शिफ्ट किया है और हम G20 समिट से भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट। एक बार हमारा इस प्रकार का कमिटमेंट बनता है तो परिवर्तन बिल्कुल साफ नजर आता है। நாட்டின் வளர்ச்சி என்பதெல்லாம் இல்லாமல் பெண்கள் தலைமையில் நாட்டின் வளர்ச்சி என்ற விஷயத்தை நாங்கள் முன்னெடுத்தோம்। बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है। और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंचना। और ये खाली நேரத்தை ஈடுக்க விரும்பவில்லை। பொருளாதாரத்தில் 5வது இடத்திலிருந்து 3வது இடத்திற்கு மிக வேகமாக முன்னேற வேண்டும்। की आशा आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए सरलता बढ़ जाती है। देश के लिए जो जरूरतें हैं वो आराम से पूरी करने का सामर्थ्य बन जाता है। और इसलिए हम उस दिशा में बड़ी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं। राज्यों का सहयोग भी उसमें उतना ही महत्वपूर्ण है। और भारत के संविधान ने हमसे जिस प्रकार का दिशा निर्देश किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, लेकिन मैंने उसमें आग्रह रखा है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारे राज्यों के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा हो, राज्य और केंद्र के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा हो, हम अच्छा करने की स्पर्धा करें और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमने देखा है जब मैं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता हूं, आपने देखा G20 हम एक जगह पे कर सकते थे। மத்திய அரசிற்கும் மாநில அரசிற்கும் உள்ள உறவு நல்ல முறையில் இருக்க வேண்டும்। शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंगें हुई और दुनिया भर के नीति निर्धारक जो गए G20, लेकिन भारत में G20 आने के बाद नए प्राण से भर गया है, नया सामर्थ्य आ गया है। और ये भारत की ताकत है कि उसने पूरे विश्व को जोड़ने में G20 के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया है। और उसके इन दिनों भी परिणाम आए उसके बाद G20 நாடுகளுக்கு பாரதம் ஒரு புதிய சக்தியை காண்பித்திருக்கிறது। अभिनंदन स्वीकार करने में गया। और शायद 2014 में 19 में भी ऐसा अनुभव नहीं था जितना इस बार फ्लो है। दुनिया के करीब करीब, अब नाम ले, उसने भारत को शुभेच्छा व्यक्त की है या बात करने की कोशिश की है। यानी ये वैश्विक जो हमारा ताकत है उसका परिचय करवा रहा है। और उसके कारण मैं मानता हूं कि विश्व में हमारा सम्मान और साथ साथ भारत में निवेश
ये दोनों संभावनाएं बढ़ रही है। உலக அளவில் நம்முடைய கௌரவம் அதிகரித்திருக்கிறது. 75वां वर्ष है। हम चाहते हैं कि संविधान हमारी संवैधानिक संस्थाओं का அரசியல் அமைப்பின் 76வது ஆண்டு இது. अदालत में धाराओं का उपयोग करके काम करने के लिए नहीं है। ये एक हमारी भावना है, हमारा स्पिरिट है, और हमें इस 75 साल को ऐसे मनाना है ताकि हम संविधान के स्पिरिट को जन जन तक पहुंचाएं, हर जन को संविधान இந்த की जो भावना 75வது ஆண்டை நாம் சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும். இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் உள்ளுணர்வு என்னவோ அதனை மக்கள் வகையில் दिशा में हम काम கொண்டு செல்ல வேண்டும். साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष के उत्सव में देश आज रंगा हुआ है, और हम छत्रपति शिवाजी महाराजिன் 350வது பதவியேற்பு விழா கொண்டாட்டத்தில் நாடு ஈடுபடவிருக்கிறது. हमें मजबूती देती है, और इसलिए हम देश में इसी एजेंडा को आगे रखते हुए, और जब इसी समय 350 साल का पर्व आया है, तो हमें अपनी पॉलिसी और परफॉर्मेंस और सामान्य मानवीय का जीवन बेहतर करना है, उसमें जरा भी நம்முடைய विलंब नहीं கொள்கைகள் करना है। செயல்பாடுகள் போன்றவற்றின் மூலமாக சாதாரண மக்களின் வாழ்க்கையை வளப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கொள்கை. लेकर को हम चलेंगे ही चल रहे हैं। இதற்கான साथ साथ हम नए नए வழிகாட்டுதல்கள் திட்டங்கள் எல்லாம் தயாராகிக் கொண்டிருக்கின்றன. कुछ ज्यादा अनुभवी सांसद भी है। आप देखते हैं कि इन दिनों पिछले 2 दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था, सब मैंने कहा भी जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। तो मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है, मंत्री में आपका नंबर कर सकता हूं, आया, हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा, तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं, और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, யார் மந்திரி बांट रहे हैं, பதவிக்கு வருவார்கள் என்பதெல்லாம் कहता हूं, और जो இனிமேல் தான் தெரியும். என்னுடைய கையெழுத்தோடு கூட இவர் மந்திரியாகிவிட்டார் என்ற செய்தி எல்லாம் வரும். आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी कहे भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली யாரையும் போன் செய்து உங்கள் பெயர் மந்திரி சபையில் இடம்பெறுகிறது, உங்கள் குடும்பத்தோடு அங்கே வந்து விடுங்கள் என்று சொல்வார்கள். அது சரியான நபரிடமிருந்து வந்ததா என்பதை எல்லாம் நீங்கள் உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, இந்த சதிகளுக்கெல்லாம் பலியாகி விடாதீர்கள். चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल PhD कर लिया उन्होंने। वो शायद இந்தியா கூட்டணி மக்கள் தவறான செய்திகளில் பரப்புவதில் முனைவர் பட்டம் பெரும் அளவிற்கு வேலை செய்திருக்கிறார்கள், தவறான செய்திகள் பரப்பி இருக்கிறார்கள். ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी இங்கே அமர்ந்திருக்கிற இந்த குழு மிகவும் அருமையான ஒரு குழு. सही निर्णय करने वाली, कृपा करके எனவே இந்த குழு நல்ல முடிவுகளை எடுக்கும். साथियों, विकसित भारत का संकल्प लेकर के हम चले हैं। 3 नंबर की इकोनॉमी पहुंचना मैं जानता हूं, निश्चित रोड मैप के साथ उसको हम पार करने वाले हैं। और मैंने पहले भी कहा था
कि मेरा पल पल देश के नाम है, मेरा पल पल आप लोगों के नाम है। मैं 24/7 अवेलेबल हूं। வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை உருவாக்குவது எங்களுடைய லட்சியம். हमें मिलकर के அதற்காக 24 மணி நேரம் பணியாற்ற நான் தயாராக இருக்கிறேன். 24 மணி நேரமும் நான் உங்களுக்காக பணி செய்கிறேன். और जो समर्थन दिया है, वाकई मैं मानता हूं भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उतना कम, और मैं विश्वास दिलाता हूं எங்களுக்கு வாக்களித்தவர்கள், எங்களுக்கு ஆதரவளித்தவர்கள் அனைவரும் को पूरी करने में பாரதத்தின் ஜனநாயகத்தை வளப்படுத்தியவர்கள். कोई कमी नहीं रखी. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता. என்னுடைய வாழ்க்கையின் ஒரே ஒரு குறிக்கோள் என்னுடைய இந்திய அன்னை. 40 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना. 140 கோடி மக்களின் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக 140 करोड़ देशवासियों को 1000 साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है, उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में இந்த 140 கோடி மக்களின் ஆசைகளை, அவர்கள் பட்ட கஷ்டங்களை எல்லாம் நீக்கி அவர்களுடைய மரியாதையை அதிகரிப்பதுதான் என்னுடைய மிஷன். नजर मिल जाए तो अच्छा होगा, ये मैं स्थिति पैदा करना चाहता हूं. उसका मन लालायित होना चाहिए. हिंदुस्तानी है, अरे यार जरा हाथ मिला लूं, कुछ एनर्जी मुझे भी आ जाए. मैं देश को इस ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूं. और साथियों, मुझे पक्का विश्वास है आपका साथ, आपका सहयोग, आपका अनुभव, உங்களுடைய ஆதரவு, உங்களுடைய கூட்டணி, உங்களுடைய ஆலோசனைகள் उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगा. இதையெல்லாம் எனக்கு தேவை. மக்களின் ஆசைகள் எல்லாம் லோக்சபையின் இந்த அவை பூர்த்தி செய்யும். இதயபூர்வமான நன்றிகள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். जो एनडीए के साथी स्वागत करना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं, और बाकी भी जो फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी स्वागत करना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं. एनडीए के वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति भवन की ओर भी इसके बाद जाएंगे. तो एनडीए के साथी तमिलनाडु देवनाथ, हाँ जाओ जाओ. एनडीए के साथी या वरिष्ठ नेता जो स्वागत के लिए आए हैं वो एक आगे धीरे धीरे जा सकते हैं. तो एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय, ये ऐतिहासिक बैठक है और प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है. एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को. तो एक बार फिर से तीसरी बार लगातार देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और ये ऐतिहासिक पल है जब सभी दलों ने सर्वसम्मति से, एनडीए से जुड़े सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है. और इस तरह से जवाहरलाल नेहरू के बाद अब தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நாடாளுமன்ற குழுவுடைய தலைவராக பிரதமர் நரேந்திர மோடி
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நாடாளுமன்ற பழைய வளாகத்தின் மைய மண்டபத்தில் உரையாற்றினார். தற்போது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளை சேர்ந்த எம்பிக்கள், சக கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் பிரதமருக்கு பூங்கொத்தும் சால்வையும் அணிவித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கக்கூடிய காட்சிகளை நாடாளுமன்ற மைய மண்டபத்திலிருந்து, பழைய நாடாளுமன்ற வளாகத்திலிருந்து காட்சிகளை பார்க்கின்றோம். அனைவருக்குமான ஆட்சியாக, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய ஆட்சியாக எனது அடுத்த ஆட்சி இருக்கும். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பெருவெற்றியை பெற்றிருக்கிறது. எதிர்க்கட்சிகள், குறிப்பாக இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் வெற்றி அடைந்தது போல ஒரு பிம்பத்தை கட்டமைக்கிறார்கள். காங்கிரஸ் கட்சி 2014, 19, 24 ஆகிய 3 தேர்தல்களில் பெற்ற சீட்டுகளை விட அதிகமான சீட்டுகளை நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோம். எங்களுக்கு தோல்வி என்பதே கிடையாது. தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் இந்த கூட்டணி தலைவர்களுடைய ஒத்துழைப்போடு தேச நலனில் எந்த சமரசமும் இல்லாமல் ஆட்சி செய்யும் என்று கூறியிருக்கிறார். இவிஎம் பற்றி தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சிகள் அவதூறு பரப்பி வந்தார்கள். இனி அதை பேச மாட்டார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் என்று எதிர்க்கட்சிகள் அந்த துணியில் விமர்சனமும் செய்தார். குறிப்பாக தமிழ்நாட்டை பற்றி பேசும்பொழுது, தமிழ்நாடு இந்த முறை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு சதவீதத்தில் ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறது. இங்கே தேர்தலை நிற்கிறதுக்கே ஆளில்லாத நிலைமையெல்லாம் போய் சதவீதத்தில் பெரிய அளவுக்கு முன்னேற்றத்தை பெற்றிருக்கின்றோம். கேரளாவில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பாஜக முதன்முறையாக வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. ஒடிஷாவில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆந்திராவில் ஒரு சுனாமியே அடித்திருக்கிறது. இப்படியெல்லாம் ஒரு நீண்ட உரையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை ஸ்லாகித்து இது ஒரு புதிய அத்தியாயம், அதனது தொடக்கம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தன்னுடைய உரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். நேர்களே, இப்போ நாம் பார்க்கக்கூடிய காட்சிகள் நாடாளுமன்ற மைய மண்டபத்தில் திரு ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட தமிழகத்தை சேர்ந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அங்கத்துவ பிரதிநிதிகள் திரு ஓபிஎஸ் பிரதமருக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவிக்கக்கூடிய நேரலை காட்சிகளை பார்க்கின்றோம். திரு ஓபிஎஸ், தமிழ்நாட்டிலேருந்து திரு எல் முருகனை பார்க்கின்றோம். திரு டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்ட தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய முக்கிய தலைவர்கள் பங்கேற்று தற்போது காபந்து பிரதமர் என்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கக்கூடிய காட்சிகள். இன்னும் 2 நாட்களில் மீண்டும் பிரதமராக பொறுப்பேற்கிறார். 3வது முறையாக பிரதமராக, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசின் பிரதமராக பொறுப்பேற்கக்கூடிய பிரதமருக்கு கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள், எம்பிக்கள் வாழ்த்து தெரிவிக்கக்கூடிய காட்சி. சம்பிரதாயபூர்வமாக இந்த கூட்டணியுடைய தலைவராக, நாடாளுமன்ற குழு தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி. अगले 10 साल के एनडीए के विजन को भी सामने रखा और जानते हैं कि प्रधानमंत्री अक्सर 25 वर्षों के भारत के विजन की बात करते रहते हैं. उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे दुनिया में जो साख बढ़ी है उसको और आगे बढ़ाया जाना है. और निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस किया है. जी, निश्चित तौर पर कोर्टयार्ड और ये जो तस्वीरें हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो इस वक्त हमारे दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. एक हुजूम सा उमड़ा है. एनडीए जो घटक दल है उनके तमाम जो सांसद हैं, जो नेता हैं. பிரதமர் பேசுவதற்கு முன்னதாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய முக்கிய தலைவர்கள் பேசினார்கள். இந்த ஆட்சியுடைய ஸ்திரத்தன்மைக்கு 2 பேருடைய ஆதரவு என்பது மிக முக்கியம். ஒன்று டிடிபியுடைய சந்திரபாபு நாயுடு மற்றும் நிதிஷ்குமார், இருவருடைய உரைகளும் குறிப்பிடத்தக்கது. சரியான நேரத்தில் சரியான தலைவர் நரேந்திர மோடி, அவருக்கு எங்களுடைய ஆதரவு மிக வலுவானதாக இருக்கிறது. உலக அரங்கத்தில் இந்தியாவுடைய பெருமையை உயர்த்தியவர் நரேந்திர மோடி. ஆந்திராவில் எங்கள் கூட்டணி பெற்ற வெற்றிக்கு பிரதமர் மோடியுடைய செல்வாக்கு என்பதும் கூட முக்கியமானது என்று பேசினார். நிதிஷ்குமாரும் எங்களுடைய ஆதரவு வலுவானது, நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கின்றோம் என்று கூறி பேசினார்.